جب میری آنکھیں کھلیں تو میں سمندر کے کنارے ریت پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا اور کئی لوگ میرے گرد جمع تھے۔ نامعلوم کون ہے، کسی کی آواز کانوں میں پڑی۔ معلوم نہیں اس سمندر میں کہاں سے آ گیا ہے۔ کیا معلوم بیچارے نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے سارے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ سمندر میں دور دور تک جہاز اور کشتیاں آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ بیٹا تم کون ہو؟ اور اس بے نام سمندر کی آغوش میں کس طرح سے آ گئے؟ ان میں سے ایک بڑی عمر کے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ بابا آپ یقین کریں کہ میں خود نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا بزرگوں سے مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ بابا آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، یہ بمبئی شہر ہے، یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں اپنی ہی حفاظت آپ کرنا پڑتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سمندر میں کس طرح پہنچ گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں پنڈت سے مقابلہ کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں منو مٹی تلے دبتا چلا گیا تھا۔ اس پنڈت نے پتہ نہیں ماں جی اور غزالہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، بیچارے بستی والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اچانک ہی میرے بالکل قریب ایک نئے ماڈل کی بلیک کار آ کر رکی۔ اس میں سے 3-4 نوجوان تیزی سے نکلے اور میرے گرد گھیرا ڈال کر کہنے لگے، چپ چاپ چل کر گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ شور کرنے کی کوشش کی تو پستول کی سبھی گولیاں تم پر خالی کر دیں گے، لیکن تم لوگ کوئی سوال نہیں، صرف ہمارے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ اگلے لمحے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ان میں سے ایک نے میری بات کاٹتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی ساحل سمندر سے نکل کر بمبئی شہر کی بھری پڑی سڑکوں پر فراٹیں بھرنے لگی۔ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان باتوں کا جواب تو یہی لوگ دے سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت ان لوگوں سے کسی بھی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ میں باہر گزرنے والے مناظر کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کار ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی تو میں نے اچانک کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز صاف نظر نہیں آئی۔ بس اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کسی جدید ترین عمارت کا احاطہ ہے۔ ان میں سے ایک نے کار کا انجن بند کر دیا اور اتر کر پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، نکلو، اور میں خاموشی سے کار سے اتر آیا۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے کار کا دروازہ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر برآمدے پہ چڑھ گیا۔ برآمدے میں 2 دروازے دائیں بائیں تھے، ایک سامنے تھا۔ اس نے اس دروازے کو کھولا اور ہم اندر چلے گئے۔ عمارت میں مکمل سناٹا تھا۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہ اپنی سجاوٹ کے اعتبار سے ڈرائنگ روم ہی لگتا تھا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا اور میں نڈال ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کسی کی آہٹ پا کر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ جو شخصیت میرے سامنے کھڑی تھی اسے دیکھ کر میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ میرے سامنے وہی بزرگ چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑے تھے جنہوں نے مجھے ساحل سمندر پہ نصیحتیں کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا یہ سب کیا ہے اور مجھے اس طرح سے یہاں لانے کا مقصد؟ پہلے تم اپنے بارے میں کچھ بتا دو تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے تمہارے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ بزرگ کا لہجہ نرم تھا۔ میرے محترم، میں نے آپ کو ساحل سمندر پہ جو کچھ بتایا وہ سب صحیح تھا، اور اگر میں آپ کو اپنی کہانی بھی سنا دوں تو شاید آپ میری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود میں تمہاری کہانی سننے میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اس بار
मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं झुठलाऊंगा। बुजुर्ग ने ठोस लहजे में कहा। ठीक मोहतरम, अगर आप बज़िद हैं तो मुझे अपने बारे में बताने में कोई एतराज़ नहीं है। अब उस पर यकीन करना न करना आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। फिर मैंने उन बुज़ुर्ग को कब्र में पैदा होने से लेकर समुंदर में आने तक की रोदात सुना दी, तो वो मुझे यूं घूरने लगे जैसे इन्हें मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो। नामुमकिन, ये बात सिर्फ कहानियों किताबों में तो मिल सकती है, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, और बतौर सबूत मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से तुम नाकाबिले तस्खीर इंसान हो। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अब तक के हालात तो यही साबित करते हैं, लेकिन मैं अपने माजी के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप अपने बारे में बताना पसंद करेंगे? मैंने सोफे पर पहलू बदलते हुए पूछा। यूँ समझ लो कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने वाली मेरी तंजीम के आदमी है, और मैं इस तंजीम चारेगर का सरबराह हूँ, और तुम्हें यहाँ पर पड़ोसी मुल्क का जासूस समझकर लाया गया था। हमारी इस तंजीम का असूल है कि हम इस सरजमीन से गद्दारी करने वालों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर चुका हूँ, इसलिए अब तुम आज़ाद हो। अगर कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और अगर यहाँ रहना चाहते हो तो आज़ादी से रहो, घूमो फिरो, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। उन्होंने निहायत ही शफ़क़त से मुझसे पूछा। बाबा, क्या किसी तरह पता नहीं चल सकता कि वो बस्ती कौन सी थी जहाँ से मुझे समुंदर के हवाले किया गया था? मैंने नज़रें बाबा के कदमों की तरफ झुकाते हुए कहा। क्यों, क्या गजाला से मिलने की बेचैनी है? उन्होंने मेरी हालत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कहा। बाबा, मुझे तो यूँ लगता है कि उस जालिम ने गजाला को भी मार डाला है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आदमियों से कहकर पता लगवाता हूँ कि वो बस्ती किस इलाके में है या किस शहर में है। इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें मालूमात मिल जाएंगी। आओ तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाओ। मैं उनके साथ चलता हुआ एक खूबसूरत से बेडरूम में जा पहुंचा। अब तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। ये कहकर वो बुजुर्ग कमरे से बाहर निकल गए। मैं नर्म व मुलायम बेड पर आकर लेट गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन हालात से दो चार होता जा रहा हूँ। एक के बाद एक नाकाबिल यकीन हादसा मेरे साथ पेश आ रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं ख्यालात के धारे पे बहता जा रहा था, और न जाने किस लम्हे नींद की देवी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ आया था। मैं बेड से उठकर सामने बने हुए बाथरूम में दाखिल हो गया। हाथ मुंह धोकर बाथरूम से निकला तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। बॉस आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उसके साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम तक आ गया। नाश्ता लग चुका था। ड्राइंग टेबल के तरफ मौजूद तमाम कुर्सियों पे लोग मौजूद थे। सिर्फ 2 कुर्सियां खाली थीं, जिनमें से एक पर मैं आकर बैठ गया और दूसरी पर वो नौजवान बैठ गया। मेरे यहाँ पर मालिक या नौकर वाला कोई हिसाब नहीं है। इस तंजीम के लिए हम सब एक बराबर हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ने इस तंजीम के लिए कोई ना कोई कुर्बानी दी है। इन सब के मुश्तरका फ़ैसले से मुझे तंजीम चारेगर का सरबराह बनाया गया है, और ये लोग मेरा हुक्म बिल्कुल इसी तरह से मानते हैं जैसे कि बच्चा अपने बाप का हुक्म मानता है। बुजुर्ग ने मुझे अपनी तंजीम के बारे में तफसील से बताते हुए कहा। राजू, जब तक हमें उस बस्ती के मुतल्लिक कोई इतला नहीं मिल जाती, तुम इसे बम्बई की सैर कराओ। यस बॉस, राजू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। शहरयार, तुम्हारे बेडरूम में कपड़े मौजूद हैं, इनमें से इंतखाब करो और पहनो, और जब तक तुम्हारा दिल चाहे बम्बई में घूमो फिरो। ये राजू तुम्हारे साथ रहेगा। तैयार होकर आईने में जब मैंने अपने आप का जायज़ा लिया तो खुद भी हैरान रह गया। अभी मैं अपना जायज़ा ले ही रहा था कि राजू कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर कहने लगा, आज तो न जाने बम्बई शहर पर कौन सी क़यामत गुजरने वाली है।
इस वक्त आप किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने उससे मजाक करते हुए कहा। क्यों आप हम गरीबों का मजाक उड़ाते हैं जी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हम बेडरूम से निकल कर पोर्च में आ गए। राजू ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और हम बम्बई की सड़कों पर थे। एक रात पहले मैं इस गाड़ी में कैदी की हैसियत से था और इस वक्त ये गाड़ी मुझे बम्बई शहर घुमाने में मसरूफ़ थी। फिर तीसरे दिन राजू मुझसे कहने लगा, शहरियार, चलो आज तुम्हें एक नई जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। 2 दिन की रफ़ाकत में राजू मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गया था। अभी कोई नई जगह बाकी है? मेरा लहजा इतना मासूमाना था कि राजू खुलखुला कर हंस पड़ा। राजू की सूरत में मुझे एक अच्छा और पुरखुलूस दोस्त मैसर आ गया था। उसके साथ मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। वो अब तक एक पुरखुलूस और बेलौस दोस्त साबित हुआ था। कार एक झटके से रुकी तो मैं अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। आओ, राजू ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। हम पैदल चलते हुए एक खूबसूरत से इलाके में दाखिल हो गए। यहाँ फ्लैटों की बालकनियों पर लड़कियाँ खड़ी हमें अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। राजू सबको नज़रअंदाज करता हुआ मुझे लेकर इलाके के बिल्कुल आखिरी कोने पर पहुँच गया। ये मकान दूसरे तमाम बने मकानों से खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। राजू मुझे लेकर मकान में बने हाल में दाखिल हुआ, जहाँ राग रग की महफिल जमी हुई थी। शहर के लोग तकिए जमाए रक्स व सुरूर की महफिल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। 2 ख्वाजा सरा थरकते मटकते नवाबीन को शराब फराम करने में मसरूफ़ थे। राजू और मैं भी एक आरामदेह तकिए से टेक लगा कर बैठ गए। हम तकरीबन 2-2.5 घंटे तक इस महफिल से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। अभी मैं राजू से उठने के लिए कहने ही वाला था कि मैंने एक शख्स को हाल में दाखिल होते देखा। इससे पहले इसके 4 बॉडीगार्ड हाथों में गन्ने लिए अंदर दाखिल हुए। वो अपने रख रखाव से इस शहर का कोई बहुत बड़ा रईस लगता था। इनके हाल में दाखिल होते ही महफिल में खामोशी छा गई। इसने नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा तो लोग इसके देखते ही उठ उठ कर बाहर जाने लगे। राजू ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे इशारे से उठने से मना कर दिया। वो मुझे यूं हैरत से देखने लगा जैसे इसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हुआ हो। अब सिर्फ मैं और राजू थे। नौवारिद ने जेब से शराब की बोतल निकालते हुए राजू से कहा, क्यों बे राजू, क्या अपनी औकात भूल गया जो अब तक यहाँ बैठा है? टाइगर, वो मेरा मेहमान साथ था, राजू ने हल्काते हुए जवाब दिया। तुझे पता है ना, जब टाइगर यहाँ आता है तो किसी को यहाँ नहीं मांगता। तू अब तक यहाँ बैठा है, अब बोल तुझे क्या सज़ा दी जाए? टाइगर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, राजू ने आंखें चमकाते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि राजू इससे इतना खौफज़दा क्यों है। विक्रम, टाइगर किसी खूनख्वार चीते की तरह घर आया। इसकी लाश का तोहफा इसके बॉस के पास भिजवा दो, ताकि इन लोगों का कोई आदमी आइंदा मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी ना करे। चारों बॉडीगार्डों में से एक राजू की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो राजू के करीब आया, मेरा दायां हाथ फिजा में लहराया और दूसरे हाथ से मैंने उसकी गन अपने कब्जे में ले ली। इससे पहले कि इनमें से कोई कुछ समझता, मेरा हाथ एक बार फिर लहरा गया। गन का पिछला हिस्सा विक्रम की खोपड़ी पर पड़ा और वो करा कर फर्श पर ढेर हो गया। इसके फर्श पर ढेर होते ही मैंने राजू पर छलांग लगा दी और इसे घसीटता हुआ दूर ले गया। अगर मुझे राजू पर छलांग लगाने में एक लम्हे की भी देर हो जाती तो टाइगर के दूसरे बॉडीगार्ड्स की गन से निकलने वाली गोलियां राजू के जिस्म में उतर चुकी होती। टाइगर, अपने आदमियों से कहो कि गन्ने फेंक दो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने गन का रुख टाइगर की तरफ करते हुए कहा। इस हरकत का अंजाम जानते हो? टाइगर ने किसी खूनख्वार कुत्ते की तरह घराते हुए कहा। अंजाम की परवाह मैंने कभी नहीं की। जो कह रहा हूँ उस पर फ़ौरन अमल करो, वरना तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये गन मुझे दे दो और खामोशी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे, मेरे या मेरे आदमी के हाथों कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।
टाइगर ने अपना लहजा नरम करते हुए कहा। मैंने एक बॉडीगार्ड का निशाना लेकर फायर कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। इस बेचारे ने तुम्हारी वफादारी में होशियारी करने की कोशिश की थी। इसके बाकी दोनों बॉडीगार्ड भी सहम गए और उन्होंने हथियार कालीन पर फेंक दिए। राजू, हथियारों को उठा लो। मेरा लहजा इतना सख्त था कि राजू जैसा शख्स भी सहम गया। खामोशी से हथियार उठाकर वापस मेरे पास आ गया। सिर्फ एक लम्हा, बस एक लम्हा। मैंने राजू को देखने के लिए टाइगर की तरफ से नफरत बरती थी। उसने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुझ पर छलांग लगा दी। इसके बाद तो उसने मुझे घूंसों और लातों पे रख लिया। उसकी लातें इतनी तेज़ी से मेरे जिस्म पर पड़ी थीं कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अचानक ही उसने लातें रोक कर मुझे गिरबान से पकड़ कर उठाने की कोशिश की थी। उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया। टाइगर, आज तक जो कुछ तुमने किया सो किया, लेकिन अब तुम इस लायक नहीं रहोगे कि कुछ कर सको। मैंने उसके दाएं हाथ को घुमाते हुए उसकी कोहनी पर इतनी ज़ोरदार ज़रब मारी कि उसके हाथ की हड्डी दरमियान से टूट गई और उसका हाथ कोहनी के पास से इस तरह से झूल गया जैसे इसमें जान ही ना रही हो। अभी वो दाएं हाथ की तकलीफ से संभल नहीं पाया था कि मैंने बाएं हाथ के साथ भी वही हशर किया। टाइगर, अब क्या इरादा है? क्या दोनों टांगें भी तुड़वानी है? मैंने हकारत से उसे घूरते हुए पूछा। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। वो डरे हुए अंदाज में चिल्लाने लगा। आइंदा अगर राजू की तरफ तुम्हारे किसी आदमी ने आंख उठा कर भी देखा तो उसका भी इबरतनाक अंजाम होगा। मैंने धमकी अमेज़ लहजे में कहा। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो गिड़गिड़ाया। लेकिन तुम हो कौन? मैं शेरू दादा हूँ। राजू मुझे यूँ देखने लगा जैसे मैं इंसान नहीं, कोई माकूल फितरत चीज़ हूँ। फिर असला उठाए हम लोग आकर गाड़ी में बैठ गए। राजू ने एक बार फिर ड्राइविंग सीट संभालने की कोशिश की थी। मैंने उसको ऐसा नहीं करने दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। ज़िंदगी में पहली बार ड्राइविंग सीट संभाली थी, लेकिन मायनाज ड्राइविंग कर रहा था। ये तुम बेवा औरतों की तरह किस बात का शौक मना रहे हो? मैंने राजू की खामोशी को तोड़ा। मेरी बात सुनकर वो चौंका। शहरियार, तुम टाइगर के बारे में कुछ नहीं जानते हो। सारा बम्बई उससे डरता है। बम्बई के बड़े बड़े दादा लोग इसे भत्ता देते हैं। पुलिस ने कभी आज तक इस पर कभी हाथ नहीं डाला। जिस इलाके में ये रहता है वहाँ के लोग इसका नाम भी अपनी ज़ुबान से लेते हुए डरते हैं। न जाने आज तक इसके हाथों कितने खून हो चुके हैं। बॉस ने भी कभी इससे बरह रास्त टकराने की ज़रूरत नहीं की। इसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया तो पूरी बम्बई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। राजू ने खौफज़दा लहजे में मुझे टाइगर के बारे में पूरी तफसील बताई। अब तुम ये परेशान होना छोड़ो और टाइगर के भूत को जहन से उतार दो। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये शौक का पर्दा चेहरे से हटाओ। पहले वाले राजू बन जाओ। मेरे जुमले से राजू के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कार को मार्ग के पोर्च में ले जाकर बंद किया और चलते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गए। बाबा मीटिंग में मसरूफ़ थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने सामने बैठे हुए शख्स से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, शहरियार, ये हमारी तंजीम की एक शाख जो कि लंदन में है, इसके सरबराह हैं और ये हमारा मेहमान शहरियार है। बाबा ने हम दोनों का आपस में एक दूसरे का तारुफ करवाते हुए कहा। मैंने आगे बढ़कर इनसे मुसाफा किया। बाबा हमारी तरफ से तवज्जो हटाकर जब राजू को देखा तो इनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह संजीदगी ने ले ली। क्या बात है राजू, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? बाबा जी ने राजू के चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए पूछा।